کچھ آج ہمارے سے قبل ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ عالیہ قدسیہ میں جھوم کر درود پاک صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد قادریم نعرے اوزیاء زنند شیخ احمد رضا قطب عالمی زنند دوشے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو کل ہے مظہری انوار مصطفیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبی عادت بنا رہی ہے درود و سلام کی مگر داد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پستی بہتے خواجہ عثمان ہارونی یا معین الدین چشتی ومن غوث اعظم بے سر و ساما مددی ومن غوث اعظم بے سر و ساما مددی قبلہ دی مددی بھائی ایمان مددی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقولی ماں کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول کہ منو دست دامان آل رسول ولہ الولا بے کمالی کشف الدجا بے جمالی حسن الجمیع صلو قتالی صلو علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم الحمدللہ ولیہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وصحابہ متعدبین بعذابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیتکم عن زیارت القبور فازوروها فإنها تزهد وتذكر الآخرة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم معزز سامعين باوقار برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات ابھی جو ہے تقاریر و نعت و منقبت سماعت کیے موت کے تعلق سے میں نے جس حدیث مصطفیٰ کو موضوعی سخن بنایا، اللہ کے حبیب دونوں جہاں کے طبیب حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ تسلیم ارشاد فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، یعنی رب کی محبوب ارشاد فرماتی ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروها لہذا اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، فإنها تزهد في الدنيا، اگر تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تم آخرت سے اجتناب کرو گے، بیزاری اختیار کرو گے، وتذکر الآخرہ، آخرت کی یاد۔ اگر تم قبروں کی زیارت کرو گے دنیا سے دوری اختیار کرو گے اور آخرت کو یاد کرو گے،
تو تم قبروں کی زیارت کرو. اب زیارت کرو گے کب؟ جب تم جاؤ گے تب، جب تم میں سے کوئی جائیں گے تب، خاندان والا جائے تب، نہ کہ یہ کہ صرف 40 دن ہی زیارت کریں. ہمارے یہاں تو 40 دن تک یہ ہے نا، 40 دن کی زیارت ہے. اس کے بعد پھر سال 2 سال 5 سال کے بعد اپنے خاندان والوں کی قبروں کی زیارت. یہاں قبروں کی زیارت آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو زیارت کو کرو. وہ تو منع کیا گیا تھا ابتدا اسلام میں اس لیے کہ جہالت کا دور تھا. لوگ اپنے خاندان والوں کی قبروں میں جاتے تھے. جس طرح نا علم کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ کہہ بیٹھتے ہیں میرے خاندان میں فلاں ایسا تھا نا، اپنی ایک ہاتھ سے پکڑ کے 3 آدمی کو پھینکتا تھا. حالانکہ حقیقت سے معلوم کرو تو بڑے گانگا کچھ بھی نہیں. تو ایسے ہی ابتدائی اسلام میں لوگ نیا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان والوں کی قبروں کے پاس جاتے تو اس طرح سے طرح طرح کی باتیں کرتی، بےہودہ اور بدگوئی کلام کرتی. تو آقا دو جہاں حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم قبروں کی زیارت مت کرو. ہماری زیارت کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بے ڈھنگے پن کی علامتیں دور ہو گئی، اسلام لوگوں کے قلب جگر میں راسخ ہو گیا، دین کی باتوں میں لوگ چلنے کی کاوش اور کوشش کو جاری رکھا، تو آقا کا دل جب مطمئن ہو گیا تو رب کی محبوب نے فرمایا ضرور اب تم قبروں کی زیارت کرو. اب تم اپنے خاندان والوں کی قبروں کی زیارت کرو. زیارت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آگے کے جملوں میں رب کے محبوب نے فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، تو تم دنیا سے بیزاری اختیار کرو. جب قبروں کی زیارت کرو گے تو دنیا کے الجھنوں میں نہ پڑو گے، دنیا سے محبت نہ کرو گے. اتنی محبت تو اسی میں غرق ہو جاؤ، کچھ سوجھی ہی نہیں، کچھ سمجھ میں آئے ہی نہیں. رب کی محبوب دانائے غیوب حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسری حدیث پاک میں فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تم اگر قبروں کی زیارت کرو گے تو تم دنیا سے محبت نہیں کرو گے. جب تم دنیا سے محبت کرو گے ہی تو دنیا کے فتنوں میں تم پھنسو گے. وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، لاسٹ میں رب کی محبوب نے فرمایا منع تو میں نے تم سے کیا تھا، اب تمہیں میں اجازت بھی دے رہا ہوں، زیارت کرو، دنیا سے بیداری اختیار کر لو گے. زیارت کرو گے قبر والوں کی، قبر میں جا کر کے تو دنیا کے لوگوں سے محبت نہیں کرو گے. اگر تم قبر والوں کی زیارت کرو گے تو فتنے فسادوں سے دور رہو گے. اگر تم قبر والوں کی زیارت بھی کر لیجیے اور دنیا سے دوری بھی اختیار کر لیے تو کہتے ہیں تذکر الآخرہ، اب تمہیں صرف آخرت کی یاد آئے گی کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. کیونکہ رب کی حضور جب پیشی ہوگی نا تو ضرورت نہیں ہے اس محفل سے کسی کو اٹھا کے گواہ پیش کی جائے اس فلاں کے حق میں تم گواہ دو. وہ تمہاری ہاتھ خود گواہی دے گا کہ تم اس ہاتھ سے کیا کرتے ہو. جب لیسٹ تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا اس کو پڑھو، تم پڑھو گے اپنی زبان سے کہو گے یہ اعمال بد تو میرے نہیں ہے، میں نے ان اعمال بد کو کبھی کیا ہی نہیں. رب کی طرف سے حکم ہوگا سچ کہہ رہے ہو، خود کہو گے نہیں میں نے نہیں کیا. کہ اگر صحیح معنوں میں کیا پھر کہو گے نہیں تو کہے گا کیا کوئی پیشی کی جائے. تو پھر رب کی طرف سے جب اس میں مہر مارا جائے گا اس کے باوجود تم کما حق ہو جو ہے اس کا اقرار نہ کرو گے تو اس وقت
जो है अब रब के तबारक व तआला की बारगाह में कोई सुनवाई नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्म के हर हर अज़ा तुम्हारे खिलाफ। जिस जबान को तुम प्यारी जबान समझ लो, यही जबान तुम्हारे हक में फैसला गलत करेगी। अब यहाँ तो मैं किसी के हक में गलत सच गवाही दे दूं तब भी कहता अच्छा रुको मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। अब वहाँ क्या करेगा, किसका काम तमाम करेगा? तो अपनी जबान को यही काट दे, तब है करने के लिए कोई रोक भी ना है। हाँ तुम्हारे खुद गवाही देंगे, यहाँ तो मनमानी कर लेता है अपने हाथों से, जबानों से, आंखों से, पैरों से, वहां ये सब अज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि ये हमारे अज़ा हमारे खिलाफ गवाही ना दे, बल्कि जिस तरह से हदीस मुस्तफा में ये बात आई है उलमा से सुनते हो कि रब के महबूब रब के महबूब हुजूर अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म नूर है। तो क्या नूर का माने तो रोशनी के है, तो क्या ये इल्म तलब है कि तुम इल्म में से जो है रोशनी हासिल करो कि अंधेरे में सुई गिर जाए उसको तुम चुन लो। ऐसा होने से फिर हर मौलाना भी अंधेरे से सब चीजें निकाल दे। तो यहाँ यही मुराद है, क्या यही माना है कि अंधेरे में कोई चीज गुम हो जाए? तो इमाम साहब ने तो कुरान पढ़ा, हदीस सुनाई, तो फिर इमाम साहब से कहो कि ढूंढ के निकालो यहाँ से सुई हमारी के लिए, सुई हमारी इस अंधेरे में गिर चुकी है, ढूंढ के बता दो। यहाँ वो अंधेरा मुराद नहीं अजीज दोस्तों, इस इल्म को जो नूर कहा गया ये नूर हकीकतन नूर है। इस नूर से मुराद ये है रब की महबूब ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान को सीखा दूसरे को सिखाया वो सबसे बेहतर है। कुरान सीखो, हदीस पढ़ो और दीनी बातें पढ़ो, सीखते जाओगे सिखाते जाओगे, सिलसिला जारी रहेगा। तुम नहीं रहोगे, जब रहोगे नहीं तो गाली कैसे दोगे, जब रहोगे नहीं तो सदका कैसे करोगे, जब रहोगे नहीं तो किसी की मदद क्या करोगे? हदीस मुस्तफा पढ़ते हैं, आका हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, कोई बात नहीं मेरी हर उम्मत के लोगों तुम रहो के ना रहो मेरे फरमान में अमल तो करो, तुम नहीं रहोगे उनका अदर सवाब तुमको मिलता रहेगा। हदीस पाक में बात मिलती है, तीन बातें हैं। मिशकात शरीफ किताब है, रब के महबूब ने फरमाया अन अबी हुरैरा कान कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन कतआ अनहु अमलहु इल्ला मिन सलसतिन सदक़तिन जारियतिन औ वलदिन सालिहिन औ इल्मिन यंतफउ बिही व यदउ लहु। रब के महबूब ने फरमाया, रब के महबूब के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं हमारे और आपके नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कुछ कामें तो करो अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में, तुम नहीं रहोगे कोई बात नहीं है, तुमको उसका सवाब क़यामत तक मिलता है। बारहा सुन चुके हो इन बातों को, अमल में लाने की जरूरत है। वो क्या है? अपने कमाए हुई रकम से अपनी जेब से निकाल के अपने हाथों से राहे खुदा में दिखावे के लिए नहीं कि मैं 10,000 लिखवा रहा हूँ मस्जिद में मेरे दादा के नाम करे लोग कि फला ने 10,000 दिया है, तो यूं दो, दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो, अपने कमाए हुए तो तुम रहो कि ना रहो, तुम्हारे आमाल सालेहा का सवाब तुमको क़यामत तक मिलता रहेगा। अपनी कमाई हुई रकम से राह खुदा में बिला किसी रिया के, बिला किसी दिखावे की, बिला किसी लोहे पर एहसान जतलाए हुए तुम अल्लाह के रसूल के नाम पे खर्च कर दो। तुम ना रहो कोई बात नहीं, औलाद तुम्हारी नहीं है, पांच हो कोई बात नहीं, तुमको उसका सवाब मिलेगा।
तुमको उसका सवाब मिलेगा। खाली यहाँ पैसा ही मुराद नहीं, जमीन जायदाद हो, बैंक भाइले तो जो भी हो, सोना चांदी हो, राह खुदा में तुम दो, तुमको उसका अजर सवाब मिलता रहे। उसके बाद अगर औलाद सालेह छोड़े हो, दीने इल्म की तालीम दे चुके हो। आज अभी आपकी इमाम ने बयान फरमाया क्या कि वो खुद जाते मरहूम के बेटे के साथ, इसारुल हक के बेटे के साथ जाके उनकी कब्र में कुरान का दिल जिसे कहा गया, जिसे यासीन शरीफ खुद पढ़ते, बेचारा वो जैसा भी था, गरीब था, मुखलिस था, कमजोर था, नातवा था, कुछ भी था, मगर अपनी एक लीटर बेटे को कुरान तो सिखा दिया। आज उनका बेटा जाके उनकी कब्र में कुरान के दिल को पढ़ दिया किसी इमाम को लेके। इतना तो कर दिया, भले उन्हें 10 बीघे जमीन ना दिए, 10 लाख रुपए ना दिए, उनके साथ 50 लोग ना दिए कि उनके हिमायत में उठे, मगर उस कुरान की शिक्षा को दिए, इसके बारे में रब के महबूब ने फरमाया, इससे माकबल ही मैंने उस हदीस को पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान को सीखा दूसरों को सिखाया वो सबसे बेहतर। तो तुम्हारे 50 लाख की संपत्ति उस काम के नहीं, तुम्हारा वो डीएम बेटा उस काम के नहीं, जिस तरह से किसारुल हक के मुखलिस गरीब बेटे ने अपना हक उनके बाप के कब्र में अदा कर। दुनिया में तो लाखों आए, वागो दबदबे वाली ये जमीन सबको खा गई। कुरान पढ़ो। अगर आपकी तरफ से इजाजत हो, चंद बातें बताऊं मेरे अजीज दोस्तों। कुरान पढ़ो, हदीस में सुनो। रब तबारक व तआला अपने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा निकाल रहा है। कौन? रब। इसी आयत को समझाऊंगा कुरान की, फिर मैं अपनी जगह आप गायब आराम नशीस के तहत बैठ जाऊंगा। इसको सुनने के रब किस तरह से हमें निकाल रहा है, फिर किस तरह से जमीन में हम जा रहे हैं। इसी आयत पे कुरान कहते हैं, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, रब निकालता है मुर्दा से जिंदों को। ये सब मुर्दे थे, अब जिंदा हैं। ये जितने हैं हम और पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, सब मुर्दा शई। अब जहन को करीब करो मेरे अजीज दोस्तों। तुम्हारा बाप किसी और जगह का था, तुम्हारी माँ किसी और जगह की थी, तुम्हारे बाप किसी और के बेटे, तुम्हारी माँ किसी और की बेटी। बचपना गुजारा तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने बचपना गुजारी। शबाबी का आलम आया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मायते साबिका फरमाते, 3 वक्त, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, चौसा, कोई वक्त नहीं। इन्हीं 3 टाइम में सब कुछ होता है, चोरी डकैती सब। बचपना गुजारे तुम्हारे माँ बाप अलग अलग जगहों पे। शबाबी के आलम में आया 18 पे या 20 पे या 22 पे या 24 पे। तुम्हारे बापों के लिए तुम्हारे खानदान के लोगों ने रिश्ते की तलाशी ली, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे ननिहाल के लोगों ने रिश्ते की तलाशी ली। बार बार आना और जाना हुआ, तब जाके एक रिश्ता तय हुआ। होने के बाद उनको अपनी माँ के यहाँ से तुम्हारे बाप ने अपने घर में लाया। जो कुरान अज़ीम में जिक्र किया, रब तबारक व तआला ने हुन्ना लिबासु हुन्ना व हुन्ना लिबासु हुन्ना, कुरान अज़ीम के अंदर रब ने फरमाया, मर्द औरत के लिबास, औरत मर्द के लिबास है। एक दूसरे के हक को अदा किए। युनज़िलुस समा, रब ने आसमान से बारिश को नाजिल फरमाया, उससे ये जमीनी चीजें पैदा हुई, तुम खाए, कुव्वत व तवानाई तुम्हारे अंदर आई। फिर उससे एक पानी नुत्फा जिसे कहते हैं वो पैदा हुआ। जब तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे के हक को अदा किए, तुम बाप के पुष्ट से माँ के रहम में वो पानी पहुंचा। वो पानी तो पहले 60 दिन तक पानी ही रहा, फिर
उसके बाद खून बना, खून बना। इसमें ना गुफ्तगू करूंगा कि कितने दिन तक माँ के पेट में किस तरह रहता है बच्चा। खून बना, 4 महीने के बाद रूप और रब के हुक्म से फरिश्ते डालते। वो दिन करीब आता है, 10 माह 10 दिन के बाद आपके घरों में, हमारे घरों में अल्लाह के फर्ज से, उनके हबीब के सत्य से औलाद होगी। हाँ, क्या ये पानी? अब हुआ क्या आपके घर में? गोश्त पोस्ट वाला बच्चा। पानी ही तो था ना। पानी में बोलने की कुव्वत है, समझने की इस्तेताअत है? नहीं। मुर्दा सही कहा गया पानी को। पानी से जिंदा हुआ एक बच्चा। इसी को कुरान ने कहा युखरजुल हय्य मिनल मय्यत, मुर्दे से जिंदों को निकाला। सब ये सब दिख रहे हैं, ये सब मिसले पानी के थे। आज गोश्त पोश वाला इंसान नजर आ रहा है। उसके बाद देखो कि युखरजुल मय्यत मिनल हय्य, और फिर जिंदों से रब निकालता है मुर्दे को। फिर पानी, गोश्त पोश वाला बच्चा हुआ, बचपना गुजारा, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। कोई एक्सीडेंट में जाता है, कोई किसी हाल में जाता है, कोई किसी हाल में जाता है। जैसा कि जिसके सारों हक साहब की तुम चंदुम में शरीक हुए हो, ये किस तिथि में इस तारे की थी के अंदर से गया, वो सबके जहनों में है। तो हर आदमी अलग अलग कंडीशन में इस दुनिया से रुखसत होता है। था क्या जिंदा, अब ले जाके उसके दफन कर रहे हो कब्र में। क्या रब ने इसी को कुरान में फरमाया है कि मुर्दा से जिंदा निकालना, फिर जिंदों को मुर्दे को निकालना। सब यहाँ जिंदा हो, किसी की रूह अभी निकल जाए फिर मुर्दा हो जाओगे। तो इस जिंदों से ही तो मुर्दा निकला ना। अब अपने कुरान में फरमाता, फिर आगे के जुमले में गौर करो। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इरशाद किया, युखरिजुल अर्द बअद मौतिहा। पहले तो थे पानी की शक्ल में पैदा हुए तो इंसान बना, जिंदा रहा इस दुनिया में, फिर मुर्दा हुए। सब ने कहा फौरन खबर करो सारे रिश्तेदारों को, और हदीस पाक में भी बात है, मंजिल वालों को मंजिल की तरफ पहुंचा दी जाए। फटाफट खबर आपने पहुंचाई अतराफ जवानी में, रिश्तेदारों में, और उस मुर्दे को ले जाके दफन किए। कहाँ? कब्रिस्तान में मिट्टी से दफन किए। उसका फिर इसके बाद कुछ होगा। रब कुरान में फरमाता है युखरिजुल अर्द बअद मौतिहा, फिर जमीन से निकालेगा उसके मरने के बाद, फिर तुम निकलोगे। क्या? मुर्दा, फिर हुए जिंदा, फिर तुम्हें कफनो दफन किए, फिर तुम निकलोगे वहां जिंदा। रब फरमाता है लास्ट में इस आयत के, वकज़ालिक तुखरजून, रब इसी तरह निकालता है। टंके की चोट में बोलते हो, अगर तुम्हारी कुव्वत है तो एक मक्खी को पैदा कर दो। रब इसी तरह निकालता है अपने बंदों को और दीगर चीजों को। अब जब कब्र में पहुंचा दिया, बाद में आप फिर जमीन से निकलेंगे। मौलाना अजीबुल बरकत मुजद्दिद हिमायत साबिका अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, इंसान जो है लोगों उलमा की ज़बानी सुनते हो कि कब्र में 3 सवाल होगा। लास्ट में जो सवाल होगा, इस मर्द इस्तिदारे में तुम क्या कहते हो? जो मोमिन होगा वो कहेगा ये मेरे मुस्तफा है। जिसके दिल में ईमान ना होगी वो तो कह नहीं पाएगा कि ये मेरे मुस्तफा है। ईमान की दौलत होनी चाहिए। और यही तक बात नहीं, बल्कि आला हज़रत कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ, पहले बुखारी की हदीस पाक है, अनसिन काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता कुना अहब्ब अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही